नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्लास 6 का पहला चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन हमारे लिए कितना उपयुक्त है और यह कहां से आता है, यह हम सबको जानना बहुत आवश्यक है। चाहे विज्ञान कितना भी आगे चला जाए, ये दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन भोजन हमेशा इंसान की या किसी भी जीव की सबसे बेसिक नीड होगी। तो आइए समझते हैं एनसीईआरटी के पहले साइंस के चैप्टर से कक्षा 6 के कि भोजन कहां से प्राप्त होता है और किस तरीके से ये ग्रहण किया जाता है। What did we eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? Food variety. Activity 1. Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in the different states of India. List all the items in your notebooks and given in the table 1.1 as the many friends as possible. आगे की एक्टिविटी ये कहती है कि there seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? Think about the rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. On the other hand, some food items are made with the many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kind of vegetables, salt, spices, oil and so on. Activity 2 ये कहती है कि choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these. By discussing with your friends and elders at home, list them in the table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. देखिए, जैसे कि रोटी या चपाती जिसे कहते हैं, जिसमें आटा और वाटर की मदद से हम बनाते हैं। दाल जो होता है उसमें पल्सेस होता है, वाटर होता है, सॉल्ट होता है, ऑयल होता है, घी होता है, स्पाइसेस होता है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी फाइंड? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? डिस्कस इन द क्लास। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? ये अन्न के स्रोत, ये भोजन के स्रोत आते कहां से हैं, ये हमें सोचना है, सोचने की जरूरत है। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस. इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस of some of the ingredients that we listed in the table 1.2. Fruits and vegetables, for instance. Where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animals. तो धान और गेहूं की फसलें तो आपने मैक्सिमम ने देखी होगी, नहीं देखा होगा तो जरूर गांव में देख लीजिएगा। और दूध, अंडे और मीट जो हैं वो एनिमल्स से आते हैं। तीसरी एक्टिविटी यह कहती है कि लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम. The ingredients and their sources, some examples are shown in the table 1.3 and the blanks in the table 1.3. 1.3 ये कहता है कि इडली जो होती है, इडली के इंग्रेडिएंट्स होता है राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। और सोर्सेस कहाँ से होते हैं? प्लांट से, इनके सबके पौधे होते हैं और वहीं से ये ग्रेन्स प्राप्त होते हैं। चिकन करी में चिकन, स्पाइसेस, ऑयल या घी और वाटर की मदद से प्राप्त होता है, जहां पर चिकन एनिमल से प्राप्त होता है, स्पाइसेस जो है ये प्लांट से होता है, ऑयल घी एनिमल से होता है, वाटर जो है वो नेचुरल सोर्स है। खीर जो है उसमें मिल्क लगता है, राइस है, शुगर है। तो ये चीजें हम जान चुके हैं। अब और भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं और अगला पेज ये कह रहा है कि what we conclude from activity 3. Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits.
Animal provide us milk, meat products and eggs. Cows, goats, buffaloes are some common animals which give us milk and milk products like butter, cream, cheese, curd and other used all over the world. Can we name some other animals which give us milk? क्या हम और भी जानवरों के नाम बता सकते हैं जो दूध देते हैं? आइए हम थोड़ा सा प्लांट के स्ट्रक्चर को इसी बीच समझ लेते हैं। प्लांट का बेसिकली दो पार्ट होता है, एक होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में मतलब कि उनका जो जड़, जो जमीन के अंदर का भाग होता है उसे रूट सिस्टम बोलते हैं, जिसमें शुरुआती में जो थोड़े से मोटे होते हैं जमीन के अंदर चले जाते हैं उनको प्राइमरी रूट कहते हैं, और उनके अंदर जो फाइबर्स निकलते हैं जो बिल्कुल पतले पतले रेशेदार जैसे धागे जैसे होते हैं उनको सेकेंडरी रूट के नाम से जाना जाता है। अब हम शूट सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें फूल होते हैं, फल होते हैं, स्टेम यानी कि तना होता है, पत्ती यानी कि लीफ होती है, बड्स होते हैं जिसमें से बाद में फूल निकलता है, जहां से पौधे के मेन तना में से, मेन स्टेम में से कुछ छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते हैं, उनको नोड बोलते हैं, उस जगह को नोड बोलते हैं, और इंटरनोड इस जगह को बोलते हैं, एक दूसरे नोड के बीच की दूरी को इंटरनोड कह देते हैं। तो ये हम आप समझ चुके हैं कि एक प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से इसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और उनकी क्या अहमियत है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। Plants are one source of our food. Which parts of a plant? We eat many leafy vegetable. हम बहुत पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। We eat fruits of some plants. Sometimes root, sometimes stem and even flowers. Have we ever eaten pumpkin? कभी कोहड़ा खाया है? पहली wants to know if any of our food comes from sources other than the plants and animals. कुछ और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कि फ्लावर्स डिप इन द राइस पेस्ट एंड फ्राइड ड्राइड। सम प्लांट्स हैव 2 or more eatable parts. एडेबल का मतलब होता है eatable parts. Seeds of mustard plants give us oil and leaves are used as vegetable. जो सरसों का पत्ता होता है उसको वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं, और उसके जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उसको हम तेल निकालने के इस्तेमाल करते हैं। Can we think of different parts of banana plants that are used as food? Think of more examples where 2 or more parts of a single plant are used as food. अब आइए, जैसे केले के पत्ती की सब्जियां भी बना लेते हैं, और जो केला का जो फल होता है उसका फल के रूप में, फ्रूट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। ब्रिंजल, बैंगन की कढ़ी जिसमें ब्रिंजल होता है, चिल्ली एज स्पाइस होता है, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड या सोयाबीन होता है, एनी अदर प्लांट भी इसमें इस्तेमाल होता है। और भी एक्टिविटी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस फूड के अंदर होता है। अब देखिए, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। अपने आसपास के सभी पौधे को टेस्ट करने की कोशिश ना करें, हो सकता है वो जहरीले हो और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए बी वेरी केयरफुल। एक्टिविटी 4 कह रहा है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन द टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स वेयर इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। एक्टिविटी 1.3 पीछे जा सकते हैं वीडियो के और देख सकते हैं कि विच पार्ट ऑफ प्लांट। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स इन द प्लांट पार्ट। एक्टिविटी 5 में हम पहुंच चुके हैं और ये कह रही है कि टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग और चना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ही अच्छे प्रोटीन युक्त सोर्सेस हैं। पुट a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seeds? क्या आपने समझा मैंने जो कहा? एक चने और मूंग को पानी में भिगा दीजिए 24 घंटे के लिए। अगले दिन उसका पानी निकाल दीजिए और चना और मूंग के भीगे हुए ग्रेन्स को एक गीले कपड़े में बांध दीजिए। उसके अगले दिन अब ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों चना और मूंग अंकुरित हो चुके हैं, स्प्राउट हो चुके हैं, और फिर उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या चेंजेस हैं। ये देखिए, ये चना मेरा भिगा हुआ है और ये चना स्प्राउटेड है। हाँ, कवर्ड विद द वेट क्लॉथ एंड द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अब आफ्टर वॉशिंग these sprouted seeds you can eat them. अब हम
अंकुरित चने या मूंग को खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और प्रोटीन युक्त भी होता है. दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, add some spices and get a tasty snack to eat. Do you know where honey comes from? कहाँ से मधु आता है, कहाँ से हनी आता है? How it is produced? Have you seen a beehive where so many bees kept buzzing about? Bees collect nectar, sweet juices from flowers, convert it into honey. होता क्या है, मधुमक्खी के छत्ते को देखिए, आपने देखे होंगे बहुत से पेड़ में ये है, और यहाँ पे कुछ जिस जगह से मधु निकलता है तो वो होता क्या है कि जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खी होती है, वो फूलों से नेक्टर लेकर के जाती है और अपने छत्ते पे लगाती जाती है. स्वीट जूस जिसे कहते हैं, नेक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर यू. अब उसको हनी में कन्वर्ट करती है एंड स्टोर इट इन देयर हाइव. जो बी हाइव होता है, मधुमक्खी का पालन होता है बहुत जगह, जिसे एपीकल्चर भी कहा जाता है. ऑलराइट, हाँ. तो flowers and their nectar may be available only for a part of the year. So, bees store their nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. तो होता क्या है कि जो मधुमक्खी होती है, जितने महीने के लिए उनको फूल दिखता है, तो उनमें से नेक्टर को इकट्ठा करती है अपने छत्ते में, ताकि वो उसको साल भर खा सके अपने इस्तेमाल के लिए, और उसी से हनी भी निकाला जाता है. आप इसे समझने की कोशिश कीजिए. उसे जब निचोड़ा जाता है उसके छत्ते को, तो उसमें से हनी निकल करके आता है. आगे बढ़ते हैं. व्हाट डू एनिमल्स ईट? जो जानवर हैं, जो पशु हैं, वो क्या खाते हैं? डू यू हैव ए केटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? अ डॉग, अ कैट, बफेलो और अ गोट. आगे बढ़ते हैं. यू विल then surely be aware of the food the animal eats. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? आपको क्या पता है कि ये सारे जानवर क्या क्या खाते हैं? आइए कुछ लिस्ट में हम जानने की, देखने की कोशिश करते हैं. Several animals are listed in the table 1.5. Some of them the type of food. 1.5 टेबल ये कहता है बफेलो जो है वो ग्रास खाती है, वॉयल केक खाती है, हे खाती है, मैंने भूसा खाती है, ग्रेन्स खाती है, अनाज खाती है. कैट जो बिल्ली जो है वो स्मॉल एनिमल्स को खाती है, जैसे चूहे को खाती है, बर्ड्स चिड़िया को खा सकती है, दूध भी पीती है, और बाकी चीजें भी घर में थोड़ा बहुत खा लेती है. चूहा क्या खाता है? लॉयन क्या खाता है? टाइगर क्या खाता है? स्पाइडर क्या खाता है? हाउस लिजर्ड क्या खाती है? छिपकली जो होती है, काऊ और ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या खाते हैं? आप हमें कमेंट में लिख करके बताइएगा. अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि कौन क्या खाता है, उसके बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल चीज है. अगला है कि हैव अ लुक ऑन द टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज. प्लेस एनिमल्स वेयर वी ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स. ग्रुप ए, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ पौधे को खाते हैं या घास को खाते हैं. दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. There are some animals which eat other animals. Place these in group 2. These animals are called carnivores. Carnivores वो होते हैं जो दूसरे जानवरों को खा जाते हैं, छोटे जानवरों को खाते हैं. बेसिकली वो मांस खाते हैं, तो they are called carnivores. Do you find some animals which eat both plants and animals? Place them in the group 3. They are called omnivores. Omnivores वो जानवर होते हैं जो पौधे को भी खा लेते हैं और छोटे जानवर को भी खा लेते हैं, यानी कि मांस मछली को भी खा लेते हैं. दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स. जैसे में बहुत सारे इंसान भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं. प्रिपेयर अ टेबल 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन द कॉलम्स एज शोन ओवर हियर. जैसे हर्बीवोर्स मतलब कि जो घास खाते हैं, वो गाय एग्जाम्पल में. कार्निवोर्स मतलब सिर्फ और सिर्फ मांस खाने वाले, लॉयन है, शेर जिसे कहते हैं. ओमनीवर्स मतलब जो कुत्ते होते हैं वो मांस भी खाते हैं, दूध भी पी लेते हैं. ऑलराइट, तो वेज नॉन वेज दोनों खा लेते हैं कुत्ते. ऑलराइट, आगे पहली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बीइंग्स विद फिलिंग द टेबल 1.6. अब इंसान को किस कैटेगरी में डालना चाहते हैं? ओमनीवोरस, कार्निवोरस या हर्बीवोरस? कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं. वी नो दैट देयर आर मेनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will be enough.
we will need to find some ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हर किसी को खाना भरपूर मात्रा में मिले. अब कुछ की वर्ड्स है, अब चैप्टर समाप्त होता है. इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है, एडिबल का मतलब क्या होता है, नेक्टर का मतलब क्या होता है, स्प्राउटेड सीड्स का मतलब क्या होता है, हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर. तो हम आपको समझाते हैं. इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि एक चीज को बनाने के लिए जो मटेरियल्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. एडिबल का मतलब होता है इटेबल, जो चीजें खाने युक्त हो. ठीक है ना. नेक्टर का मतलब नेक्टर का मतलब होता है स्वीट जूस कह सकते हैं, जो फूलों से लेकर के नेक्टर को बीज अपने हाइव तक लेके जाती हैं, स्टोर करती हैं. दे आर कॉल्ड नेक्टर. ऑलराइट. स्प्राउटेड सीड्स, जो अंकुरित चना या मूंग या बाकी कोई भी ऐसे ग्रेन्स को ले सकते हैं. हार्बीवोर मतलब जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स को खाता है, घास खाता है, प्लांट्स को खाता है. कार्निवोर मतलब सिर्फ एनिमल को खाने वाला, फ्लैश ईटर. और ओमनिवोर जो दोनों को खाता है, मांस और प्लांट्स दोनों को खाता है. तो यही आपका चैप्टर समाप्त हुआ. अगले चैप्टर में हम बात करेंगे. बताइए एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जानना बहुत जरूरी है. कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा. अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा. अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें. यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल. गुड लक.